गंडकी से मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ खजरार अधिकारी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अधिकारी जी, जो हादसा हुआ है, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस हादसे के बारे में? When that happened, जी after 5 minutes, I had been there. I looked all the situation. Unfortunately, how the plane had been gone on under the City River's laps. Even though I am very serious because the people had been almost dead. So this is 68 people were there, including they are from abroad and the Nepalese. And I am very serious. Today is the day of Maghi Sankranti and Maghi Parva. We had enjoyed this holy religious activities. So this is a very bad happen, and how that happened, we will make one inquiry committee. I hope that the central government will has to call the emergency meeting of the cabinet. Then that will be formed one inquiry committee, and we can clear about it. Yeah, Mr. Adhikari, what is the cause of this accident? I think that the pilot is overconfident to turn to take turn west side to east side, but unfortunately, how that happened and how that gone inside the river, so it is very honorable. Mr. Adhikari, it is known that the flight was very close to the landing. Then this incident happened. No. That is not reason. But always they often took the old aeroplane and airport. But now the aircraft moved towards the new airport. In between, that has been happened. In between the movement to the old airport to the new airport, this incident has happened. Yes. In between, that has been happened. Okay. So it can originally we can imagine that the plane had gone west side to east side. In between that hasn't happened. It means anyway, pilot will be in confusion. Other cause I don't know, because it will go to the inquiry committee. And Mr. Adhikari, what is the status of that rescue operation going on? The rescue operation is very good, and they are rapidly rescued. They are involved in rapidly rescued. Nepal Army and Armed Police Force, Nepal Police, and civil society are very close to operate and rescue and operate. Mr. Adhikari, so far 32 bodies have been recovered as per Nepal media, but the visuals are very horrifying. What are the is there any chances of other passengers to be alive? The kind of visuals we are getting. Almost we cannot hope to get the live body. Sorry. थैंक यू वेरी मच खगराज अधिकारी, सीएम है गंडकी के। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ा विमान हादसा हुआ है पड़ोसी देश नेपाल में। और बताया ये जा रहा है कि येती एयरलाइंस का ये वही विमान है जिसका डेमो हुआ था लैंडिंग का, और उसी यात्री विमान का ये एक बड़ा हादसा हुआ है। 72 लोग इसमें सवार थे और ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है, दर्दनाक भी। ऐसे में जबकि आज नेपाल में भी एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व माघी संक्रांति, और ऐसे में ये एक बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल, और जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है वो बेहद डरावनी है। 32 शव जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है।
मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद, क्योंकि ये बड़ा विमान हादसा है। मंत्रिमंडल की बैठक तुरंत बुलाई गई है नेपाल में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल में बेहद अहम आपात बैठक बुलाई है मंत्रिमंडल की। इस विमान हादसे की आखिर क्या वजह है, इसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं और ये एक बड़ा हादसा है। नेपाल आर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बिल्कुल, तो एक और बैठक, और देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भयानक ये हादसा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लगातार वहां पर आसपास जो लोग मौजूद थे वो तुरंत उस घटना स्थल पर जुट गए। उनसे जितनी मदद हो सकी वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। और नेपाल के ही गंडकी राज्य के मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने अभी कुछ देर पहले ही हमसे न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में इसकी जानकारी दी कि किस तरह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यह हादसा हो सकता है, लेकिन हादसे के बाद की तस्वीरें बेहद खौफनाक है। किस तरह से धुएं का काला गुबार आसमान छूता दिखाई दिया और इसीलिए आसपास के लोग, तमाम स्थानीय लोग यहां मदद के लिए पहुंचे हुए हैं। अपने अपने स्तर पर लोग उस आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं यही डरा रही हैं और ये आशंका जाहिर कर रही है कि 72 लोग जो कि उस विमान में सवार थे, जिसमें 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे, उनका बचना लगभग मुश्किल सा लग रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए कितने खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है और जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है उसके तुरंत बाद विमान में आग लग जाती है। बताया ये जा रहा है कि पुराने एयरपोर्ट से नए एयरपोर्ट के शिफ्टिंग के बीच में जब विमान को वहां से ले जाया जा रहा था तभी ये हादसा हो गया। और हादसा कितना भयानक था उसकी तस्दीक करती है तस्वीरें सामने आई है। तुरंत जितने भी लोग आसपास मौजूद थे वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जितनी मदद उनसे हो सकती है वो करने की कोशिश करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 32 शव आपको बता दें कि अब तक निकाले जा चुके हैं। नेपाली मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और त्योहार का ये दिन बताया जा रहा है। वहां पर भी संक्रांति का त्योहार जो है वो धूमधाम से मनता है और पोखरा वो जगह जहां पर वैसे भी पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और त्योहार मनाने के लिए और भी संख्या में लोग वहां पर जुट रहे थे। और ऐसे में ये दर्दनाक हादसा, बड़ा विमान हादसा जिसमें 32 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। और ये बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पड़ोसी देश नेपाल से, जहां पर काठमांडू से जिस एती एयरलाइंस के विमान ने उड़ान भरी थी और पोखरा में जहां पर इसे लैंड करना था, सुरक्षित लैंडिंग उस विमान की नहीं हो पाई, क्रैश लैंडिंग हुई है। 72 लोग इसमें मौजूद थे। 32 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। काठमांडू से सीनियर जर्नलिस्ट खेम ने भी हमें यह बताया कि कोई जिंदा बचा हो इसकी उम्मीद कम है, लेकिन आधिकारिक बयान का इंतजार जरूर किया जा रहा है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नेपाल के ही गंडकी राज्य के मुख्यमंत्री से हमने कुछ देर पहले ही बात की और मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने भी ये बताया कि लैंडिंग सेफ नहीं हो पाई है और आशंका ये है कि पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से संतुलन बिगड़ा था शायद और इसीलिए ये क्रैश लैंडिंग हुई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जैसे ही लैंडिंग से पहले संतुलन गड़बड़ाया। जो शुरुआती जानकारी है, सामने का टायर डिसबैलेंस होने के बाद एक बड़ा धमाका, टक्कर और उसके बाद धुएं का काला गुबार। हालांकि ये शुरुआती जानकारियां हैं, आधिकारिक तौर पर इसका बयान अभी तक नहीं आया कि वजह क्या है, लेकिन तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। पड़ोसी देश नेपाल से आती ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें। एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, 72 लोग इसमें सवार थे। नेपाली मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, 68 यात्री इसमें थे, 4 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। 32 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने ही मदद की शुरुआत की और पानी की बौछार करनी शुरू की। 72 लोगों की इसमें मौजूदगी थी और ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस हादसे की विकरालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेपाल में किस तरह से एक बड़ा विमान हादसा हुआ है और नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसी बाबत एक बेहद अहम आपात बैठक भी बुला ली है। तो देखिए हादसा कैसे हुआ इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया जा चुका है जो इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब तो बाद में मिलेंगे। पहली जो कोशिश होती है वो ये कि जिंदगी को बचाया जा सके, लेकिन फिलहाल
इसमें मायूसी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो काफी ज्यादा भयावह हैं। और देखिए, इस एनिमेशन के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस विमान ने उड़ान भरी 68 यात्रियों के साथ, और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पोखरा जहां पर इसकी लैंडिंग होनी थी, शायद लैंडिंग के वक्त ही, जैसा कि खगराज अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री हैं गंडकी के, उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि शायद ऐसा मुमकिन है, हो सकता है कि पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये हादसा हुआ, चूंकि ये वही विमान है जिसका पहले डेमो भी किया गया था लैंडिंग को लेकर इस एयरपोर्ट पर। और ऐसे में पोखरा पहुंचते ही जहां लैंडिंग होनी थी, लैंडिंग बस हो जाती सफल लैंडिंग, लेकिन उससे पहले यहाँ ये हादसा हो जाता है। और उस हादसे की भयावह तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। देखिए, येती एयरलाइंस की ये वही फ्लाइट है जिसमें 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे, और इसने उड़ान भरी थी काठमांडू से। विमान ने उड़ान भरी, लेकिन लैंडिंग होते ही के समय ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्रैश लैंडिंग हो गई, सफल लैंडिंग नहीं हो पाई और तुरंत इसमें ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर निकलती सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बच पाएगी शायद ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को न्यूज 18 इंडिया के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में आज सुबह किस तरह से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक बड़ा विमान हादसा हुआ, 72 लोग इसमें सवार थे, और बताया यह जा रहा है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से जैसे ही येती एयरलाइंस के इस विमान ने टेक ऑफ किया है, इससे पहले कि पोखरा में इसकी सुरक्षित लैंडिंग हो पाती, उससे पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया और 72 लोगों की जान आफत में आ गई। 32 लोगों के शव अब तक इस हादसे से निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय पुलिस और नेपाल की आर्मी मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ा रही है। इस वक्त, जबकि कुछ देर पहले ही नेपाल की राज गंडकी के मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने हमसे बातचीत की और इस खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ था और सेफ लैंडिंग इस येती एयरलाइंस की नहीं हो पाई पोखरा में। लेकिन खास बात यह है कि नेपाल का पोखरा वो जगह है जो नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, यानी यहां पर बड़ी तादाद में देशी विदेशी सैलानियों की मौजूदगी होती है। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि भारत के मकर संक्रांति त्योहार की तरह ही नेपाल में आज भी माघी संक्रांत का त्योहार मनाया जा रहा था। और इसी पोखरा में मौजूद है विश्व विख्यात अन्नपूर्णा सर्किट, ट्रैकर्स के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र होता है। और माना यह जा रहा है कि इस एयरलाइंस में भी ऐसे विदेशी ट्रैकर्स हो सकते हैं, पर्यटक हो सकते हैं, और इस प्रमुख पर्यटक स्थल तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। उन लोगों की तादाद भी इसमें हो सकती है जो पोखरा के आसपास के इलाकों में निवास करते हो और वो राजधानी काठमांडू से आज के इस खास त्योहार के मौके पर अपने घर जाना चाह रहे हो। लेकिन ये तमाम शुरुआती जानकारियां हैं, आधिकारिक पुष्टि का इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक विमान में सवार 72 लोगों में से 32 के शव निकाले जा चुके हैं और प्रधानमंत्री ने, नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना से जुड़ी एक बेहद अहम आपात बैठक बुलाई है, जांच के आदेश भी दे दिए गए।